all. I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is computer virus. Let's get started. You have heard about virus causing health problems such as fever and other diseases. So what you do when you fall sick? Take the correct pictures. Have you heard about viruses attacking computer system? These viruses are different from the harmful viruses that cause diseases. Let us read about them in this chapter. बच्चों, आपने वायरसेस के बारे में तो सुना ही होगा जो हमारी हेल्थ को असर करते हैं, ठीक है। अगर हम डर्ट का और अपनी गंदगी का, अपने क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रखते तो फिर उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में वायरस आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको करेक्ट पिक्चर्स को टिक करना है। तो बच्चों, आपने वायरसेस और जर्म्स के बारे में तो सुना ही होगा जो आपकी हेल्थ पे असर करते हैं। अगर आप अपनी क्लीनिनेस का ध्यान नहीं देते, आप नहाते धोते नहीं हो, अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो आपकी बॉडी में वायरस या जर्म्स घुस जाते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, आपको करेक्ट पिक्चर को टिक करना है। अब क्या आपने कंप्यूटर सिस्टम के वायरस के बारे में सुना है? ये जो वायरस होते हैं ये उन वायरस से डिफरेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन वायरसेस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। Computer virus. A computer virus is a small software program that spreads from one computer to another computer and that interferes with the computer operation. Computer viruses are similar to their biological counterparts because they are capable of self-replication. The prime motive of a virus is not to cause damage but to clone itself onto another host so that it can spread further. If a virus causes damage, it is more likely to be detected, and for this reason virus authors employ stealth techniques to keep it unnoticed. A good virus has a very small footprint and can remain undetected for a very long time. वायरस क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो आपका स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग होती हैं उसे भी इफ़ेक्ट करते रहते हैं। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ये अपने बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स के ही सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को डबल करते जाते हैं, अपने आप को ही खुद से कॉपी करते जाते हैं। जो इनका प्राइम मोटिव होता है ये आपके कंप्यूटर में छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाते इनिशियली, ठीक है। ये बस धीरे धीरे अपने आप को क्लोन करते रहते हैं, फिर बाद में ये आपके पूरे कंप्यूटर में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस के थ्रू डैमेज हुआ है तो वो इजीली क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता लगने लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई वायरस जो है वो फैला हुआ है। What does a computer virus do? The virus tries to take control of the computer system. It has infected at the first available opportunity. It makes copies of itself and also tries to carry out the harmful task written in its program. This process can happen so quickly that the user is not even aware of the presence of a virus in his/her system or of the fact that anything unwanted has occurred. Some viruses have a preset date and time at which they are programmed to activate themselves and halt normal computing. Such viruses check the system clock continuously, and when their time or date requirements are met, they can create havoc by performing harmful tasks listed in their program. Viruses also stay on the lookout for any new files or any new USB pen drive that are inserted into the system. They attach copies of themselves to these new files or USB pen drives. अब ये जो वायरस है ये क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ? ये जो वायरस हैं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पहले अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप को क्या करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं, डबल होते रहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ये हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत क्विकली स्टार्ट होता है और जो यूज़र होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके कंप्यूटर में वायरस जो है वो
आ चुका है। कुछ वायरस जो होते हैं उनकी प्रीसेट डेट एंड टाइम होती हैं, ठीक है, उसी डेट और टाइम में ये एक्टिवेट अपने आप को कर लेते हैं खुद ही। कुछ वायरस जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सिस्टम क्लॉक कॉन्टीन्यूसली को चेक करते हैं अपने टाइम और डेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कुछ वायरस जो होते हैं ये आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जैसे यूएसबी हो गया, कोई सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसके थ्रू आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल program files such as word processor, spreadsheets, and an operating system program. It can infect disk by attaching itself to special programs in the hard disk called boot records. These are the programs the computer uses to start up. It can infect a file before it is attached to an email message or transferred to a disk and thus spread from one computer to another. A computer virus is incapable of performing the following tasks. It cannot infect the files on write protected disk, for example CD-ROM. It cannot infect computer hardware, for example monitor and keyboard. It infects only the software. तो बच्चों कंप्यूटर वायरस जो होता है ये फॉलोइंग टास्क को परफॉर्म कर सकता है अगर ये आपके कंप्यूटर में घुस जाए तो। ये आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे कि आपके वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होती हैं और दूसरे प्रोग्राम्स। ये आपके डिस्क को इन्फेक्ट कर सकता है उसके साथ अटैच करके, ठीक है। ये साथ ही साथ आपकी फ़ाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है जो कि आप किसी भी ईमेल में अटैच करते हो या ईमेल से कोई भी इन्फेक्टेड फाइल जो है वो आप डाउनलोड करते हो। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क, ठीक है। ये आपकी किसी भी फाइल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते ऑन राइट प्रोटेक्ट डिस्क, जैसे कि CD-ROM। ये साथ ही साथ आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये खाली सॉफ्टवेयर को ही इन्फेक्ट करते हैं। हैकर्स एंड क्रैकर्स। Computer viruses are created by programmers who want to show off their programming skills. They are people who like to break into computer system or network. There are two different types of people who write computer virus programs, hackers and crackers. Hackers refer to the people who use their skills to enter into computer system without permission. Hackers are computer enthusiasts who break into secure system to gain knowledge about them and possibly use this knowledge to play pranks. Crackers is a malicious programmer who gains unauthorized access to computer system for the purpose of stealing, altering or corrupting information. Crackers often destroy the confidential or crucial data of the system they invade. They break the security on application software and create destructive programs like viruses. तो बच्चों हम जान लेते हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं कुछ स्पेशल प्रोग्रामर्स के द्वारा जो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को शो ऑफ करते रहते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर्स में ब्रेक इनटू होते हैं और इन्हें अच्छा लगता है कंप्यूटर्स के सिस्टम को हैक करना। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स उन लोगों को रेफ़र करता है जो कि अपनी स्किल्स दिखाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करके विदाउट परमिशन, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में विदाउट परमिशन एंटर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और साथ ही साथ ये सिक्योर सिस्टम को भी ब्रेक कर लेते हैं। दूसरे आते हैं क्रैकर्स। ये मैलिशियस प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अनऑथराइज एक्सेस को पा लेते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। इसके साथ साथ ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, उसे ऑल्टर कर लेते हैं और उसे करप्ट भी कर देते हैं। क्रैकर्स जो होते हैं ये आपके कॉन्फिडेंशियल क्रूशियल डेटा को भी करप्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और ये साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी ब्रेक कर देते हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन में डालते हो। Virus history. Traditional computer viruses were first widely seen in the late 1980s. Some viruses, the Melissa virus in March 1999 was spectacular in its attack. Melissa spreads in Microsoft Word documents sent via email. The I Love You virus, which appeared on May 4, 2000, was even simpler. It contained a piece of code as an attachment. People who double-clicked on the attachment launched the code. It then sent copies to itself to everyone in the victim's address book and started corrupting files
ऑन द विक्टिम्स मशीन। तो बच्चों वायरस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरस जो था वो पहले 1980s में देखा गया था, ठीक है, जिसका नाम था मलिशा। इसने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसमें स्प्रेड होकर जो डॉक्यूमेंट्स थी उन्हें करप्ट किया था और ये वहाँ पर ईमेल के थ्रू पहुँचा था। नेक्स्ट था आई लव यू वायरस, जो कि अपीयर्ड हुआ था May 4, 2000 में, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल था, लेकिन इसमें पीस ऑफ कोड्स जो थे वो कंटेन किए गए थे और इसमें एज अ अटैचमेंट उन्हें डाला गया था। जो भी लोग इन अटैचमेंट्स में डबल क्लिक करते थे ये वायरस उनके कंप्यूटर में पहुंच जाता था। हाउ डज वायरस स्प्रेड? Origination: a programmer writes a program, the virus to cause mischief or destruction. The virus is capable of reproducing itself. Reproduction: when another floppy disk pen drive is inserted into the computer's disk drive, the virus copies itself on the floppy disk pen drive. Transmission: often the virus is attached to a normal program. It then copies itself to other software on the hard disk. Infection: depending on what the original programmers wrote in the virus program, a virus may display message, use up all the computer's memory, destroy data file or cause serious system errors. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि वायरस जो है ये फैलता कैसे है, ठीक है। ओरिजिनेशन के थ्रू, मतलब जो इसका प्रोग्रामर है ये इसके प्रोग्राम को राइट करता है, फिर ये जो वायरस है ये धीरे धीरे दूसरे कंप्यूटर्स में फैलता जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन: जब आप कोई फ्लॉपी या पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से इंसर्ट करते हो और अगर उसमें वायरस है तो वायरस जो है ये आपके कंप्यूटर में भी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ट्रांसमिशन के थ्रू: कभी कभी जो वायरस होते हैं ये किसी नॉर्मल प्रोग्राम में अटैच होते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कॉपी हो जाते हैं। इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल प्रोग्रामर के थ्रू, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे वायरस प्रोग्राम को राइट करता है, ठीक है। और ये वायरस जो होता है ये मैसेज के रूप में आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है, जिसमें आपकी कंप्यूटर मेमोरी को यूज़ कर लिया जाता है और जितने भी डेटा फाइल्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपके सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाते हैं। Our computer gets affected by virus by the following ways. It can be loaded onto your computer through an infected floppy, pen drive, CD-ROM or other storage medium. It can be transferred through a downloaded file or an email attachment. At this point, an infected file is in our computer's hard drive. When we run the program, it infects the computer. We should always scan new files for viruses before you use them. तो बच्चों ये वायरस हमारे कंप्यूटर में इस तरीके से आते हैं और इस तरीके से ये हमारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई फाइल जो है अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड फ्लॉपी पेन ड्राइव या CD-ROM के थ्रू, तो ये हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ट्रांसफ़र होते हैं किसी डाउनलोडेड फाइल के थ्रू। मान लो आप किसी अननोन ईमेल के थ्रू कोई अटैचमेंट को डाउनलोड करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो इसके थ्रू आपके जो कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू वायरस आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप कोई हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर में डालते हो तो उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है तो वो भी आपके कंप्यूटर में आ जाती है और वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को, अपनी कंप्यूटर की फाइल्स को हमेशा स्कैन करो। Do you know the first computer virus for MS-DOS was a boot search virus dubbed Brain, created in 1986 by LV brothers based at Amjad Farooq LV in Lahore, Pakistan. तो बच्चों जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था MS-DOS का वो एक बूट सर्च वायरस था जिसका नाम था डब्ड ब्रेन और इसे LV ब्रदर्स के द्वारा क्रिएट किया गया था 1986 में। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मोटोनो फ्रेड कोहेन an American computer scientist is the inventor of computer virus defense techniques. ThinkBox: do you think that the activity of a computer virus is like that of a biological virus? Give reason. बच्चों क्या आपको लगता है जो आपके कंप्यूटर वायरस की एक्टिविटी है वो बायोलॉजिकल वायरस की ही जैसी होती है? अगर लगता है तो आप इसका रीज़न दीजिए।
Computer viruses are generally written in the same programming languages that are used to create other computer programs. Internet is the most common path for virus transmission. To protect your files, scan everything you download from the internet. Symptoms of a computer virus. A virus can cause problems in a computer in many ways, such as reduce the speed of a computer by decreasing the memory, unexplained data loss by formatting the hard disk, increasing the size of files by attaching themselves to the files, causing strange movements or patterns on the screen, sudden decrease in free space on hard disk, frequent hanging of the system, displaying unusual messages, showing abnormal write protect error, displaying a change in data against the file name in the dictionary when a virus modifies the file, deleting or damaging files, frequent computer crashes, strange sounds or music plays from the speaker unexpectedly. तो बच्चों, इंटरनेट को बहुत बड़ा सोर्स माना गया है वायरसेस को आपके कंप्यूटर में आने का। इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे वायरस जो हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। हम अननोइंगली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर से, जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे सॉन्ग्स हो गए, कोई फाइल होगी, वीडियोज़ हो गए, तो इनके थ्रू हमारे कंप्यूटर में उन फाइल्स के साथ क्या आ जाते हैं, वायरस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपनी फाइल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जब हम इंटरनेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं कि कंप्यूटर वायरस जब आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसकी मेमोरी को भी ये डिक्रीज़ कर देता है, साथ ही साथ आपके जो डेटा है, अनएक्सप्लेन्ड डेटा, उसको भी ये लॉस कर देता है आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके। आपके फाइल्स की जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो फाइल्स हैं वो आपस में क्या होती रहती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती रहती हैं, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स आपको, स्ट्रेंज मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं स्क्रीन पे। जैसे स्क्रीन जो है वो कभी कभी ब्लैंक हो जाती है, कभी कभी वो बंद हो जाती है, कभी कभी उसमें कुछ ब्लिंक्स आते हैं। तो इस तरह से वायरस जो है ये आपकी स्क्रीन को भी इफ़ेक्ट करता है। आपके हार्ड डिस्क में जो फ्री स्पेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है वो फ्रीक्वेंटली हैंग होने लगता है। आपको अनयूजुअल मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होने लगते हैं, ठीक है, और आपको अबनॉर्मल राइट प्रोटेक्टर एरर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो डिस्प्लेइंग है चेंज इन डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम, वो आपके वायरस जो है वो खुद ही क्या करने लग जाते हैं, मॉडिफाई करने लग जाते हैं। साथ ही साथ वायरस जो होता है ये कभी कभी आपकी फाइल्स को भी क्या कर देता है, डिलीट कर देता है और उन्हें डैमेज कर देता है, ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर है वो बार बार क्रैश होता रहता है और कुछ स्ट्रेंज साउंड और म्यूज़िक जो है वो आपको सुनने को मिलता है। डू यू नो द क्रीपर वायरस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन एयर पैनेट in the early 1970. The Reaper, the first virus removed program antivirus, was the one who caught the creeper. तो बच्चों, क्रीपर पहला वायरस था जो कि डिटेक्ट हुआ था एयर पैनेट में अर्ली 1970 में, और जो रीपर था ये फर्स्ट वायरस रिमूव प्रोग्राम था जिसने इस क्रीपर को डिटेक्ट किया था। Types of computer viruses. The different types of computer viruses could be classified according to the origin, techniques, type of file they infect, where they hide, the kind of damage they cause, the type of operating system or platforms they attack, etc. Let us have a detailed look at them. Overwrite virus. Virus of this kind is characterized by the fact that it deletes the information contained in the files that it infects, rendering them partially or totally useless once they have been infected. The only way to clean a file infected by an overwrite virus is to delete the file completely, thus losing the original content. Examples of this virus include way, trj.reboot, trivial.88.d. Boot virus. This type of virus affects the boot sector of a floppy or hard disk. This is a crucial part of a disk in which information on the disk itself is stored together with a program that makes it possible to boot start the computer from the disk. The best way of avoiding boot viruses is to ensure that floppy disks are write protected and never starting your computer with an unknown floppy disk in the disk drive. Examples of boot viruses include Michelangelo, Stoned, Polyboot.b, Anti
.exe. तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरराइट वायरस के बारे में। ये जो वायरस होता है ये आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फाइल को इन्फेक्ट कर देता है और इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप कंप्लीटली अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं अगर आपको वायरस को हटाना है तो। इसके बाद आता है बूट वायरस। इस टाइप का जो वायरस होता है ये आपके बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है किसी भी फ्लॉपी या हार्ड डिस्क के, ठीक है। ये काफ़ी क्रूशल पार्ट माना जाता है आपके डिस्क का, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। अगर आपके बूट पार्ट में ये वायरस आ जाता है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसको अवॉइड करने का बेस्ट वे है कि आपके जो फ्लॉपी डिस्क है इसको आप राइट प्रोटेक्टेड कर दो और आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फ्लॉपी को बिना स्कैन किए यूज़ मत करो। माइक्रोवायरस. A microvirus is a type of computer virus that is primarily designed to infect a specific type of document such as Word or Excel files. If we open a microvirus infected document, the microvirus gets active into the memory and starts infecting other documents. Sometimes a microvirus sends itself by attaching with email to the people in the user's address book. Examples of boot viruses include Melissa, Relax, and Bablas. Directory virus. Directory viruses change the path that indicates the location of a file by executing a program file with the extension exe or .com, which has been infected by a virus. You are unknowingly running the virus program while the original file and program have been previously moved by the virus. Once affected, it becomes impossible to locate the original files. File infector. This type of virus infect program or executable file with an exe or .com extension. When one of these programs is run directly or indirectly, the virus is activated, producing the damage affected it is programmed to carry out. The majority of existing viruses belongs to this category, can be classified depending on the actions that they carry out. Examples of boot viruses include Jerusalem and Cascade. तो बच्चों आगे इसमें हम जान लेते हैं माइक्रोवायरस के बारे में, ठीक है। माइक्रोवायरस जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं जो कि प्राइमरीली डिज़ाइन किए जाते हैं आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका वर्ड एंड एक्सेल फाइल्स होती हैं, ठीक है। जब भी आप माइक्रोवायरस इन्फेक्टेड किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो ये जो माइक्रोवायरस होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये आपकी मेमोरी में आपके अदर डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी माइक्रोवायरस जो होते हैं ये अपने आप को सेंड कर देते हैं खुद ही किसी ईमेल के थ्रू, इससे ये दूसरे पीपल के कंप्यूटर में भी पहुंच जाते हैं। डायरेक्टरी वायरस जो होते हैं ये आपके पाथ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसी भी फाइल के लोकेशन को, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, जैसे कि आपकी एक्सटेंशन फाइल होती है या .com फाइल होती हैं, तो इसमें अगर आपका फाइल जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो आपका जो प्रोग्राम है वो ओरिजिनल फाइल के साथ साथ जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी इफ़ेक्ट कर देगा, ठीक है। और जब एक बार ये इन्फेक्टेड जो फाइल है ये आपके कंप्यूटर में पहुंच जाती है तो ये उसकी ओरिजिनल फाइल को भी क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है। फाइल इन्फेक्टर जो होते हैं ये इस तरह के वायरस होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम को रन करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो जो वायरस है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये साथ के साथ आपके प्रोग्राम्स को क्या करने लग जाता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। Worms. Computer worm is a type of malware that has the capability to replicate itself without any human interaction. It consumes a lot of memory space in replication. Once a computer has been infected by worm, its processing speed gets slowed down, works unexpectedly, and halts other tasks. A computer worm can spread itself from one computer to other by replication process. Trojan horse. The purpose of a Trojan horse is to conceal itself inside the software that seems legitimate.
When the software is installed on the system, the Trojan gets activated and infects the host system. Logic bomb, they are not considered viruses because they do not replicate. They are not even programs in their own right, but rather camouflage segments of other programs. Their objective is to destroy data on the computer once a certain condition have been met. Logic bombs go undetected until launched and the results can be destructive. तो बच्चों वॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं. कंप्यूटर वॉर्म्स जो होते हैं एक तरह के मालवेयर ही होते हैं जो कि एक कैपेबिलिटी रखते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करने की, ठीक है, और ये कंज्यूम करते हैं आपके लॉट्स ऑफ मेमोरी स्पेस को, क्योंकि ये रेप्लिकेशन में इन्हें मेमोरी जो होते हैं लगती है. जब आपका कंप्यूटर जो होता है वॉर्म से इन्फेक्ट होता है तो आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है. एक कंप्यूटर वॉर्म जो होता है वो अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने में क्या करता है, हेल्प करता है. ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं इनका पर्पस होता है ये अपने आप को क्या करते हैं, कंसील करते रहते हैं इनसाइड द सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो जो ट्रोजन है ये एक्टिवेट हो जाता है और होस्ट सिस्टम को इफेक्ट करने लगता है. लॉजिक बॉम्ब जो होते हैं ये वायरस कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है, ना ही ये अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं. ये कोई प्रोग्राम भी नहीं है, इनका खुद का अपना कोई राइट नहीं होता, लेकिन इनके पास कॉम्प्यूटराइज सेगमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का, ठीक है. इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये डेटा को डिस्ट्रॉय करना होता है जब भी आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है. लॉजिक बॉम्ब जो होते हैं ये काफ़ी टाइम तक अनडिटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जब तक कि कोई नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च नहीं हो जाता, और इनका जो रिजल्ट होता है ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माना जाता है. Do you know the name Trojan horse come from Greek mythology? It is tale from the Trojan War about the trick the Greeks used to enter the city of Troy. ट्रोजन हॉर्स जो है ये आपका ग्रीक मैथोलॉजी से आया है, ठीक है. ये टेल है ट्रोजन वॉर की जिसमें जो ग्रीक सोल्जर्स थे उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था एक बड़े से ट्रोजन हॉर्स के अंदर. हाउ टू प्रिवेंट अ वायरस? देयर इज नो foolproof way to prevent a virus. However, protection is necessary to limit the chance of infection. Some of the possible ways to prevent virus attacks are install antivirus software which scans our computer usually when the computer starts up, locates and removes any viruses that are found. Update your antivirus software frequently as new viruses appear every day. Since new viruses are created all the time, it is important that we keep our virus definition up to date. Simply installing virus protection and never updating the virus definition will not protect your computer. Avoid taking and using software from unreliable sources. Do not use pirated software as they have a higher chance of being infected than legitimate commercial or shareware software. Buy licensed software. Do not download content from unreliable sources on the internet. Virus may piggyback on such contents. Do not open any files attached to an email from an unknown source. Do not open any strange looking file attached to an email unless you are very sure about their contents, even if it's appear to come from a dear friend or someone you know. To be on the safe side, scan everything that you download. A simple virus scanning program can protect against these. Most antivirus programs can be configured to automatically inspect every downloaded file. Backup your data regularly and store your backups at a separate place so that you can recover your data with clean virus-free कॉपीज. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रिवेंट करेंगे. सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसे डाउनलोड कर लेना है और फ्रीक्वेंटली उसे अपने कंप्यूटर में स्कैन करते रहना है ताकि आपकी जो फाइल है वो बार बार स्कैन होते रहे और ये डिटेक्ट करती रहे कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं है. आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसे यूज़ करना या उसे टेक करना अवॉइड कर दो जो कि अनरिलायबल सोर्स से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ना खरीदो ना ही उसे यूज़ करो. हमेशा
लाइसेंस सॉफ्टवेयर को ही बाय करो और उसे यूज़ करो। हमेशा आप अपने जो कंटेंट्स होते हैं वो रिलायबल सोर्स से ही डाउनलोड करो, ठीक है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो किसी भी अनऑथराइज साइट से आप कोई भी कंटेंट डाउनलोड मत करो, इसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। कोई भी ईमेल जो कि अननोन सोर्स से आया, आप उसमें कोई भी अटैचमेंट होती है आप उसे ओपन मत करो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी फाइल जो आपको स्ट्रेंज लग रही है उसको भी आप ओपन मत करो, भले ही वो आपके फ्रेंड ने ही क्यों ना भेजी हो, ठीक है। सेफ साइड में आप अपने जो डाउनलोडेड जो फाइल है उन्हें भी स्कैन करते रहो, ठीक है। और साथ ही साथ अपने डेटा को भी आप रेगुलरली बैकअप करते रहो। मोर टू नो, एल्क क्लोनर वायरस वॉज ओरिजिनली अ जोक created by the high school student and put onto a game. The game was set to play, but released the virus on the 50th time of starting the game. Only this time, instead of playing the game, it would change to a blank screen that read a poem about the virus named Elk Cloner. The computer would then be infected. तो बच्चों, जो एल्क क्लोनर था पहला वायरस, ये ओरिजिनली एक जोक था जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था और उसने इसे एक गेम में भी डाला था। इस गेम को पहले स्टार्ट किया गया था, ठीक है, खेलने के लिए, बट इसे रिलीज़ किया गया था इस वायरस को जो उसके 5th टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मूवमेंट थी, ठीक है। इस टाइम पे इस गेम को प्ले करने की बजाय उन्होंने ब्लैक स्क्रीन में चेंज कर दिया था ताकि जो पोम है उसे रीड की जा सके अबाउट द वायरस नेम एल्क क्लोनर। इसके बाद जो कंप्यूटर था वो इन्फेक्ट हो गया था। Antivirus software, a set of programs that identify and remove malware, are known as antivirus software. You must have an antivirus software installed on your computer. It detects the virus in the computer and does not let the virus copy itself on your computer system. Hundreds of new viruses are developed every hour. Antivirus software developers regularly release updates on the internet that allows their programs to detect the latest known viruses. You can update your copy of antivirus only through the internet. So, it is essential to have an internet connection to update antivirus software. तो बच्चों, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में ना सिर्फ वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उन्हें टोटली रिमूव भी करते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये वायरस को आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट करता है और फिर उसे डिलीट भी कर देता है। अब काफ़ी सारे वायरस जो होते हैं वो किसी न किसी थ्रू, जैसे पेन ड्राइव के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका जो एंटीवायरस है उसे भी आपको अपडेट रखना ज़रूरी है ताकि जो अपडेटेड वर्जन है वो नए नए वायरस को डिटेक्ट कर सके और उसे आपके कंप्यूटर से हटा सके। Using an antivirus software, and antivirus software is a utility software that protects our computer being inspected by the viruses and other malware. Antivirus software runs in the background of your computer, checking every file you open. Here we are using Quick Heal Total Security Antivirus because it is well known for its high detection rate. Follow the given steps to use an antivirus software. Step 1. To open Quick Heal Total Security Antivirus software, click on Start All Programs, Quick Heal Total Security, Quick Heal Total Security. The Quick Heal Total Security windows appears. Step 2. Click the Scan Now option. A new screen appears. Step 3. Select the Full System Scan option to scan all the drives of your computer. You see the status of scanning. After the scan finishes, when no virus is found or if found and detected, a window appears displaying the message "System is secure." Step 4. Click the Close button on the Quick Heal window to exit. Antivirus software needs to be updated regularly so that it can detect new viruses. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कैसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ मेथड बताए गए हैं। यहाँ पे हमें क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसे कैसे यूज़ करते हैं ये बताया गया है। सबसे पहले आपको क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। देन आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप
क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी पे जाएंगे तो क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी विंडो जो है ये आपके सामने अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपको स्कैन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके सामने न्यू स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी। देन आपको फुल सिस्टम स्कैन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है उसकी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप उसके स्टेटस को भी देख पाएंगे। जब आपका स्कैन जो है फिनिश हो जाएगा जिसमें नो वायरस फाउंड आएगा या फिर अगर कोई वायरस डिटेक्ट भी होता है तो उसके साथ एक न्यू विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी एक मैसेज डिस्प्ले के साथ, जैसे कि जिसमें लिखा होगा सिस्टम इज़ सिक्योर, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है ऑन द क्विक हिल विंडो टू एग्जिट, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है इसे आपको रेगुलरली अपडेट करना है ताकि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये आपके न्यू वायरसेस को हमेशा डिटेक्ट करता है। नाउ मोर टू नो, Windows Defender is a default real-time protection program present in Windows 10. It helps to protect the system against viruses and malware. तो बच्चों Windows Defender जो होता है ये आपका डिफ़ॉल्ट रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोग्राम माना जाता है जो कि Windows 10 में प्रेजेंट होता है। ये हमेशा आपको हेल्प करता है ताकि आपका सिस्टम जो है वो वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहे। स्कैनिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस, whenever you attach any external device like a pen drive or a CD-ROM to your computer, the antivirus software immediately asks you to scan it. Just click the scan option. The process of scanning starts. If the device contains virus, the antivirus displays an alert message and then deletes it. After the scan finishes, a window appears displaying the message. Scanning of f.backslash completed. तो बच्चों आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी क्या करते रहो, हमेशा स्कैन करते रहो अपने कंप्यूटर के साथ। जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, CD-ROM या दूसरे डिवाइसेस अपने कंप्यूटर से अटैच करते हो तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो आपसे इमीडिएटली पूछता है कि आप कैसे स्कैन करना चाहते हैं। तो आपको स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस है स्कैनिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिवाइस में कोई वायरस होगा तो उसे डिटेक्ट करके आपके सामने वो डिस्प्ले करेगा, अगर वायरस नहीं होगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। फैक्ट टू नो, न्यू वायरसेस अपीयर ऑफन। यू मस्ट कीप अपडेटिंग योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट दीज न्यू वायरसेस, ठीक है। बच्चों वायरस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में आते रहते हैं तो इसीलिए हमें हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसे हमेशा अपडेट रखना चाहिए ताकि ये न्यू वायरस को डिटेक्ट करता रहे। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।